Hello everyone, I'm Geeta Dhui, Chairperson Social Umbrella Foundation. Welcome you all in another episode of the series called Success Booth for You. Before I start our interaction with our esteemed guest, let's have a quick snapshot about our organization. Well, this organization has been registered as Section 8 company under Ministry of Corporate Affairs as not-for-profit organization, which was started in the year 2017 by Advocate Bhavna Bajaj, who is also the director. Few main objectives are to work in the areas of education, skills development, women empowerment, to spread awareness about the rights, to work in the areas of health and hygiene. The organization supported the lives of worst hit people during the pandemic by distributing masks, ration to the migrants, ration to the common people. Small children were really perplexed and were not able to gather why they were forced to remain indoors. So we decided and later distributed drawing books, toys, color pencils to them so that they could utilize their time constructively. Police force has been playing great role during pandemic, hence we could not avoid their requirements too. Motivation helps everyone to do well. Our small steps, when appreciated, give us confidence and help us to come close to our goals. Thanks for the encouragement. दिन की शुरुआत इतना सुंदर कार्य जो सोशल अम्ब्रेला का संचालन कर रही हैं भावना बजाज, जरूरतमंद औरतों को आत्मनिर्भर बना के उन्हें गर्व से जीना सिखाना, यही है नमन। इस तरह के छोटे छोटे जब एनकरेजमेंट भरे सेंटेंसेस, कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं, so we do get motivated by such compliments. Your motivation gives us encouragement to take one step further. Our ongoing projects are हमारी जरूरतें एक कदम स्वच्छ स्वस्थ भारत की ओर. Under this project, our prime concern is hygiene. Recently, the trip was arranged on Teachers' Day and approximately 100 hygiene kits were distributed. Second, Success Booth for You. We started this project in the month of February. We have visited various colleges, met the students, interacted with them, motivated them, but could not continue because of COVID-19. But we started again online and our sessions are being well appreciated. We had the session with Kana Siroi on 27th of August, who is a motivational speaker and a soft skill trainer who talked all about anxiety and stress and its impact on youth during COVID-19. We had the privilege to have Mr. Manish Srivastava with us, who is the author of the book named Main Munna Hoon on child abuse, where the issue of child abuse was discussed with its repercussions. The session was appreciated by all. Next project we have in line is Law Simplified, which helps common person to understand law in a simpler manner. Helping others is one of the simplest ways to fill our life with joy and fulfillment. Thank you all so much. I hope we continue to get your support to achieve our goals. Your motivation, encouragement, as well as your criticism, all are welcome, as all these things would help us to do well in coming years. Well, we have today with us Mrs. Rupa Bhalla, a career counselor, image consultant, and a soft skill trainer. She is a certified train the trainer. She has done her MSc in guidance and counseling and has been an educationist for almost 18 years. She has conducted soft skills sessions in various schools, hospitals, banks, and also conducted training sessions for multi-level marketing cosmetics companies and engineering, medical, and law colleges also. She is working with Indian Medical Association, Rotary Club, and corporates. Today, she has come here as a career counselor. So we welcome you, Rupa. So let's start the session. Over to you, Bhavna. Thank you, Geeta. Thank you so much. And we welcome Rupa ji at the platform Success Booth for You. It's a privilege for Social Umbrella Foundation to have you here. You are an image consultant and soft skill trainer as well as career counselor. So tell us about your work and how do you start your day and everything, please. Okay. Firstly, let me thank you for having me over. Thank you so much.
Bhavna and Geeta. Can I call you that? I feel we are friends now that I've been called at your platform. Thanks a lot for inviting me and letting me share my views. Okay, so now you asked me that I'm a career counselor, I'm an image consultant, and a soft skills trainer. And I must also inform you that I'm a certified train the trainer. You know what I felt when I did my image and soft skills? That I lacked something. There was some more field I could get into because I've been an educationist for good about 18 years of my life. School and children have been very dear to me. So to explain everything to the youth became my agenda. So I was very happy, in fact, when you invited me over. Let's start with पहले तो what are soft skills? ये समझना बहुत जरूरी है हमारे यूथ के लिए. You know, soft skills are your communication skills, your leadership skills, even to the extent of personality development. Then how do you work in a team? जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो आपकी पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं जो या तो है या नहीं है. पर क्या अगर मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स की कमी है तो मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कर सकती हूँ? यस, ऑफ कोर्स. दैट इज द रीजन दैट वी आर देयर एज सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स. बट क्या सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है? मतलब इतना कुछ है मेरे में, मेरी हार्ड स्किल्स, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम सो वेल इनटू द सोसाइटी. व्हेन माय हार्ड स्किल्स आर सो वेल डेवलप्ड, इज इट इम्पोर्टेंट दैट आई डेवलप माय सॉफ्ट स्किल्स? यस. जो ज्यादातर इंटरेक्शन हमारी लोगों से होती है ना, अगर हमारी किसी से बनती है या नहीं बनती है, दैट इज ऑल एट्रीब्यूटेबल चिल्ड्रन टू योर सॉफ्ट स्किल्स. यू नो, एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करना है, आपको जॉब तो मिल गई, आपको प्रॉफिट चाहिए अपनी कंपनी के लिए या नेटवर्किंग कर चाहिए एक नई जॉब के लिए, तो ये टू क्वाइट एन एक्सटेंट डिपेंड करती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर. अगर मैं बोलूं कि सॉफ्ट स्किल्स नहीं होने से मेरा पोटेंशियल कम हो जाएगा या क्या मैं बिजनेस में मेरे को फायदा नहीं होगा उतना, तो यस, soft skills are so very important. Now, after explaining soft skills, let me go to image. Like you would ask me, what is image? कभी आपने ये बात सुनी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन? ये बात हमने कई बार जिंदगी में सुनी है पर कभी समझी नहीं है कि एक फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ी ना होता है. मैं तो इतना क्वालिफाइड हूँ, आई हैव डन माय एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड आई एम परस्यूइंग माय एमफिल. बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, पर जब ड्रेसअप होके एक इंटरव्यू के लिए आते हैं, जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसते हैं तो जो इंटरव्यूअर का माइंड है ना, वो कहता है आहा नहीं, मुझे ये बच्चा अपनी टीम में नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए पता नहीं, बट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशंस. First impressions are formed in the first 3 to 5 seconds of meeting a person. Literally in 3 to 5 seconds, and there is a science behind first impressions. Now, when I felt that I am already a soft skill trainer, I'm an image consultant, so I wanted that to combine it with career counseling. Career counseling में मैं एक बच्चे को career counseling करने के बाद एक रास्ता तो दिखा देती हूँ कि चलो भाई आप इस रास्ते पे चल पड़ो, या ये आपके कैरियर क्लस्टर्स हैं, या साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद आप मे बी लीगल सर्विसेज के लिए यू आर करेक्ट. उसके बाद वो कहता है कि मेरे को इंटरव्यू के लिए भी तो ट्रेनिंग चाहिए, आजकल तो सिर्फ रिटन एग्जाम से नहीं होता. दैट इज व्हाई इन माय करियर आई थॉट लेट मी कंबाइन माय क्वालिफिकेशंस विद कैरियर काउंसलर. दैट्स वंडरफुल. थैंक यू. Okay, now Rupa, most of the parents and children, they know about different careers, right? So why do you think they should come to the career counselor? Like अभी सबको पता है ये बनना है, ये बनना है. They meet people and कोई इसको बताता है कि ये बन जाओ, ये को बताता है. They keep asking people and they keep taking advices also. So how do you like tell these people, what do you tell actually? So वो क्यों आपके पास आए? Beautiful. सब सोचते हैं कि मुझे तो सब आता है, तो फिर confusion क्यों है? अभी पैंडेमिक चल रहा है, तो yesterday a child rang me up. He says, मैम मेरे 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैंने साइंस ले ली बिकॉज आई फेल्ट मैं तो इंजीनियर ही बनूंगा. 12th में आके मुझे इंजीनियरिंग में शौक ही नहीं था, मेरे को लगा ही नहीं कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है. सो मैंने क्या किया, हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया. क्यों? क्योंकि मैं तो सिविल सर्विसेज में जाऊंगा. जब मैं हिस्ट्री ऑनर्स करके सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम देने के लिए पहुंचा, तो मैं 3 बार क्वालिफाई नहीं करा. मेरे को लगा मेरा तो एप्टीट्यूड ही नहीं है. सो अब मेरे पास ना मैं सिविल सर्विसेज क्वालिफाइड हूँ, रिटन एग्जाम दे चुका हूँ 3 बार, ना मैं इंजीनियर हूँ,
मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं करना क्या चाहता था. सो आई विल टेल यू जस्ट वन थिंग. जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, उन्हें जनरली 10 से 12 कैरियर पता होते हैं. या तो उनके मामा जी किसी कैरियर में हैं, या उनके फादर बोलते हैं बेटा यू आर वेरी गुड इन योर स्टडीज, तेरी CGPA 10 है, तू साइंस ले ले, तू डॉक्टर या इंजीनियर बनना. बट क्या बच्चा उसके लिए फिट है या नहीं है, ये शायद माँ बाप छोड़ो बच्चों को भी नहीं पता. लेट मी जस्ट टेल यू 5 एट्रीब्यूट्स जो एक बच्चे को इंट्रोस्पेक्ट करने चाहिए, यूथ को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, या मे बी पेरेंट्स को इंट्रोस्पेक्ट करने चाहिए बच्चों के लिए. सबसे पहले इज योर एप्टीट्यूड. आपकी एक्चुअल जो है, आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं, आपको कौन सी चीज करना पसंद है, क्या है आपका एप्टीट्यूड. ओके, देन कम्स योर पर्सनालिटी. आपकी पर्सनालिटी कैसे है, क्या आप लोगों से बात करना पसंद करते हो, क्या आप इंट्रोवर्ट हो, क्या आप सोशल हो, या क्या मैं बोलूं कि आपको आपकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फाइनेंस है. प्लस इन माय पर्सनालिटी आल्सो आई कैन आल्सो से कि आर यू अ कन्वेंशनल पर्सन. कई बार आपने देखा होगा बच्चे अपने लिए भी रूल्स बनाते हैं और माँ बाप के लिए भी रूल्स बनाते हैं. So that is a conventional kind of a personality. So you have to find out, introspect अपने अंदर कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है. तो पहला हो गया एप्टीट्यूड, सेकंड हो गया पर्सनालिटी, देन थर्ड हो गया कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है. मैं सीए करना चाहता हूँ. व्हाई? बिकॉज सीए की ना अर्निंग बहुत अच्छी है. आई सेड ओके बेटा, आप सीए करना चाहते हो, क्या आप 4-5 घंटे दिन में पढ़ सकते हो कंटिन्यूअसली और कई साल और 4-5 घंटे की कोचिंग कर सकते हो? नहीं, मुझे इतनी पढ़ाई पसंद नहीं है, पर मैं करना सीए चाहता हूँ. तो क्या आपका जो इंटरेस्ट है वो तालमेल में है आपके हार्डवर्क के साथ, आपके एप्टीट्यूड के साथ? मतलब ये चीजें पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट करनी है. देन फोर्थ इन योर दिस थिंग इज योर एबिलिटी. क्या आपके में एबिलिटी है इतनी कि आप इस तरह की मेहनत करके अपनी चारों चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं? प्लस वैल्यू, विच इज द फर्स्ट थिंग. व्हाट डू यू वैल्यू? डू यू वैल्यू मनी? डू यू वैल्यू ग्लैमर? क्या आपको घूमना पसंद है? इज इट ट्रैवल दैट एक्चुअली encourages you, or you like traveling? If you like money and you are getting into an NGO, then there is a mismatch, no? Or if you're looking towards glamour, should you not go out towards the field that is giving you glamour? So only when you introspect all these things, then uske baad maybe to some extent you can have a personality that is as per your coordination. So what career counselor does is वो इनमें से कुछ चीजें छांटता जाता है. जब आप साइकोमेट्रिक टेस्ट देते हो तो या आप हमसे बात करते हो, whosoever is your trained career counselor, वो कई चीजें बोलता है. बच्चा बोलता है there is a difference between ability and interest. शायद मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में पर मैं काबिल नहीं हूं उसकी, तो उस बच्चे को समझाना पड़ता है कि बेटा इसको इंटरेस्ट तक ही छोड़ दो. मैं बहुत अच्छा कंप्यूटर खेलता था तो मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, पर मुझे काम करना पसंद डेस्क के पीछे नहीं आता, पर बनना इंजीनियर है, तो सिविल इंजीनियरिंग की साइड जाओ ना. तो बच्चे को इंट्रोस्पेक्ट कराया जाता है. So that is what we generally do in a very layman language. We never knew there's so much behind career counseling also. Okay, now then how do you manage these days, pandemic, like during COVID-19, how do you manage? Do you take online classes or how do people approach you? Yeah. See, generally it is a word of mouth, I'll be honest. वो एक के बच्चे का अच्छा किया तो वो 4 को जरूर बताता है, या क्लास में होता है, या कई लोग once they see that okay, Rupa is a certified career counselor or a trained career counselor, so what is her background? So my background is I'm an MSc in guidance and counseling. So they realize कि इसने काफी साल as a counselor स्कूल में काम किया हुआ है, उसके बाद ये career counselor में आई है. So they generally give me a call. So what I initially do is I talk to children. I do not do any tests till and until I thoroughly know the child myself. अगर आप कभी मेरे नोट्स देखोगे तो मैं कुछ दिखाऊं आपको, तो ये मैं पूरे नोट्स एक एक बच्चे के बारे में बनाती हूँ. ओके, जब तक मैं बच्चे को नहीं जानती, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कैन नॉट डू जस्टिस टू इट. You know, the child might not like law and the thing comes out as legal services. You know, the child has taken up commerce but the psychometric says कि साइंस में बहुत अच्छा है. अच्छा होगा, पर रियलिटी देखो ना, 11th में उसने कॉमर्स ली है तो उसके साथ के फील्ड.
So I talk to the children first and second time on the phone itself without seeing their faces. Okay, just trying to understand them. Then I either do a Zoom call or a video call. We connect so that the child starts trusting me. So much so that suddenly at around 10 o'clock, the child will say, "Ma'am, can I give you a call?" I say, "Yes." Because it comes to his or her mind कि मैंने मैम को बताया तो ये था पर मेरे को तो ये भी पता है. So then they give me a call. After that, I do a psychometric test and I make a synopsis. In the psychometric test, your interest, personality, ability, everything comes out. They are checked by best of the psychologists in the country and they give me a 17-page report जो मुझे उनसे आती है. वो 17-page report को मैं पढ़ती हूँ और बच्चे को दे देती हूँ. And at the same time, I give them an access to a dashboard जिसमें around 500 carriers उनके पास 1 साल तक available होते हैं. So उससे ये एक जिसे कहते हैं ना सिर्फ मैं राह ही दिखाती हूँ. I am kind of a tool. I let the child decide. I guide, but I try not to force my opinion. Because then again I have to see a lot of things that parents say कि नहीं हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, हम प्रेफर करेंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने. एंड मेरा एक ही चाइल्ड है, इसके बाद तो अदरवाइज हॉस्पिटल बेकार हो जाएगा. पर बच्चा आर्टिस्टिक है, उसको स्केचिंग, ड्राइंग, क्रिएटिव फील्ड्स में है. Now to bridge the gap gets very difficult. So what I do is I show the parents कि उसका aptitude ये है. Now it is your call. Plus कई बार financially children are not very well off. Okay, so they want this kind of a कि मेरे को कहाँ से scholarship मिल सकती है ताकि I can go and study abroad. So I try to do to the best of my ability. And generally yes, during the pandemic it is online. राइट. भावना जी, आप लोगों ने तो हमें भी बहुत चीजें बहुत क्लैरिफाई कर दी हैं. बिकॉज मुझे अपने टाइम में पता था कि मुझे क्या बनना है, बट 20 ईयर का गैप रहा. बट अप एंड डाउन आते रहते हैं. मुझे मालूम था कि मुझे लॉयर बनना चाहिए या मुझे एनजीओ के फील्ड में जाना चाहिए. तो आई जस्ट लाइक टू आस्क यू वन थिंग. व्हाट इज द मैसेज यू वुड लाइक टू गिव द यंगस्टर्स ऑफ टुडे? ओके, अगर एक सिंपल टर्म में बोलूंगी तो बिलीव इन योरसेल्फ. दैट इज द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव द यूथ. नाउ लेट मी एक्चुअली क्लैरिफाई. जैसे ही द थिंग्स गेट टफ यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ. शायद मेरी काबिलियत कम है, मैं वो स्ट्रेस में पहुंच जाता है. दे स्टार्ट वरिंग, दे स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स कि आई विल गो रॉन्ग. सो समझने की बात ये है कि योर माइंड इज अ वेरी पावरफुल टूल. उस टूल को उस यूथ ने अपने काबू में करना है. कैसे काबू में करना है? दैट चाइल्ड हैज टू कंट्रोल देयर इमोशंस. दे हैव टू कंट्रोल देयर माइंड सो दैट दे लीड देमसेल्व्स टुवर्ड्स सक्सेस. व्हाट इज सक्सेस? Success is different for everybody. Let me tell you a small story. Okay, around 2500 years back there was Socrates, जिसको सुकरात भी बोलते थे हिंदी में. So ये बहुत बड़े विद्वान हुए हमारे इंडियन कल्चर में. So एक बच्चे ने कहा जब सब इनके पास एडवाइस के लिए जाते हैं तो मैं भी बात करके देखता हूँ. तो सोक्रेटिस के पास गया एंड ही सेड कि अगर आप सबको गाइड कर सकते तो आप मुझे बताओ, मुझे भी एक शॉर्टकट बताओ या मुझे बताओ मैं सक्सेसफुल कैसे हूँ. तो सोक्रेटिस ने उस लड़के को देखा. ही से जरूर बताऊंगा. ही से बताओ. कहता है अभी नहीं, कल सुबह नदी के पास आना सनराइज से पहले. लड़का बड़ा खुश कि इन्होंने मुझे एक स्टेप बता देना है सक्सेसफुल होने का. सो नेक्स्ट दिन सुबह सनराइज से पहले, यस, लड़का तो बल्कि पूरी रात सो ही नहीं सका बिकॉज ही वाज सो एक्साइटेड दैट ही इज गोइंग टू गेट अ शॉर्टकट टुवर्ड्स सक्सेस. सो सनराइज से पहले वो पहुंच गया नदी के किनारे. सोक्रेटिस नदी को देख रहे थे. लड़का आके उनके साथ खड़ा हुआ. सोक्रेटिस ने उसका हाथ पकड़ा और लड़के को नदी के अंदर लेके जाना शुरू कर दिया. कुछ नहीं बोला. पानी पैरों तक आया, घुटने तक आया, स्टमक तक आया. जब बच्चे के शोल्डर तक आया तो लड़का थोड़ा सुबह का टाइम था, सनराइज से पहले, पानी भी ठंडा था. उसको टेंशन भी हो रही थी कि बोल तो कुछ रहे नहीं है, बट अब इतने बड़े विद्वान हैं तो जो वो कर रहे हैं ठीक है. एंड सडनली सोक्रेटिस ने उस लड़के का सिर पानी के नीचे कर दिया. लड़का छटपटा रहा था, बहुत बुरी तरह छटपटा रहा था. एंड सोक्रेटिस उसका सर पानी से नहीं निकाल रहे थे. जब वो लड़का बिल्कुल गिव अप करने वाला था, सोक्रेटिस ने सडनली उसका सिर पानी के ऊपर कर दिया. लड़के को बहुत गुस्सा आया. यहां मैं इनको विद्वान समझ के पूछने आया था मुझे सक्सेस कैसे मिल सकती है और ये तो मुझे पानी में डुबोने वाले थे.
तो सोक्रेटिस ने सिर्फ एक सवाल उस बच्चे से पूछा, जब आप पानी के नीचे थे बेटा, तो मुझे ये बताओ आपके मन में सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? He said, मुझे पानी के बाहर निकलना चाहिए था, मैं सांस लेना चाहता था, आई वॉन्टेड ऑक्सीजन। He says, okay, नदी के किनारे आ गए। तो he says, जिस तीव्रता से, जिस डिटर्मिनेशन से, जिस तरीके से आपको उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए थी, अगर उस तरह की शिद्दत आप किसी भी कैरियर की तरफ लगाएंगे या आपको कुछ भी चाहिए होगा, तो सक्सेस यू विल फॉलो यू पॉजिटिवली। सो इफ यू रिमेम्बर, शाहरुख खान ने, हमारी एक मूवी आई थी ओम शांति ओम में बोला था कि अगर पूरी शिद्दत से आप किसी भी चीज की कामना करते हैं तो पूरी कायनात उस चीज को आपके लिए अवेलेबल कर देती है। This is in a very raw form, but what I need to give a message to the children is that when things get tough, you should get going. That is the only time that your true personality comes out and you will shine in success. So wishing all the youth all the very best, and thank you so much for having me over. Thank you so much, and thank you, Bhavna, and thank you, Rupa. It was really wonderful. I hope our youth will get some insight of career counseling and they would benefit from this. And thank you so much, and we look forward for another session with you in near future also. Positively, I will be so very grateful. Thank you. Thank you. Thank you.